Very good morning to all of you. Welcome to the computer class. I am your computer teacher Sukriti, and students, today we are going to start with the fourth chapter, that is Excel formula and function. So let's get started with this chapter. So Excel formula and function. So in this chapter we are going to cover certain topics. So the topics that we will be covering in this chapter will be introduction to formula, creating a formula, functions in Excel, some more functions, cell reference, and changing number formats. So let's get started. Hello friends, in your previous chapter you learned how to create and format a worksheet. So as you know that in the previous chapter we learned that how we can create a worksheet and also format a worksheet. Now in this chapter you will learn how to apply formula and function for carrying out calculations in the project. So students, as you know that it is one of the feature of Excel that we can apply formulas and function to carry out certain calculations for the project. Okay, so let's get started with the introduction part. Introduction to formula. Microsoft Excel is a powerful spreadsheet program that allows you to mainly organize data and do calculations. Constants and formula are two ways of entering data in Excel. The values which are directly entered in the cell are called constant values. Numbers, names, data, currency, etc. are the examples of constant value. So students, as all of you know that Microsoft Excel is a spreadsheet program which helps you in maintaining and organizing data and also perform some calculations. और यहाँ पर क्या होता है, हमारे पास Excel में डेटा एंट्री के लिए दो चीज़ें होती हैं, दो वेज होते हैं. सो वन इज़ कॉन्स्टेंट्स एंड द अदर वन इज़ फॉर्मूला. ठीक है, तो वो वैल्यूज़ जो हम डायरेक्टली किसी भी सेल में एंटर कर सकते हैं उन्हें हम बोलते हैं कांस्टेंट वैल्यूज़. सो कांस्टेंट वैल्यूज़ कौन सी वैल्यूज़ हो सकती हैं? कोई भी नंबर, ठीक है, कोई भी न्यूमेरिक वैल्यू, नेम्स, डेटा, करेंसी. सो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ कांस्टेंट वैल्यू. Okay, a formula is a sequence of values, cell references, names of functions or operators like plus, minus, multiplication, division, etc. that produces a new value from the existing values. ठीक है, अब what is a formula? तो formula एक sequence होता है values का, cell references का, functions name के फंक्शंस के नेम का, ऑपरेटर्स मीन्स एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन या फिर और भी ऑपरेटर्स हो सकते हैं जिसका यूज़ करके हम एक न्यू वैल्यू को जनरेट करते हैं एग्जिस्टिंग वैल्यूज से. ओके, इन अदर वर्ड्स फॉर्मूला इज यूज टू कैलकुलेट न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन एंड डिस्प्ले द रिजल्टिंग वैल्यू इन अ सेल. सो एज ऑल ऑफ यू नो दैट कि हम मैथमेटिक्स में फॉर्मूला का यूज़ करके कुछ कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, जैसे कि 4+5, 9+10, 9 × 10. सो व्हाट इज दिस? दिस इज अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. You can use formulas to perform all kinds of calculation in your Excel data. ठीक है, तो हम यहाँ पर बहुत सारे formulas का यूज़ करके किसी भी टाइप की calculations को perform कर सकते हैं. ओके, so formula in Excel. In mathematics, when you write a formula, you write down the values and the operators followed by an equal to sign such as 2 + 2 = 2. ठीक है स्टूडेंट्स, तो जैसे कि हम मैथमेटिक्स में किसी भी फॉर्मूला को किस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले हम कोई वैल्यूज़ लिखते हैं जैसे कि कांस्टेंट वैल्यूज़ जैसे कि 2. फिर उसके बाद हम एक ऑपरेटर साइन का यूज़ करते हैं. ऑपरेटर साइन क्या हो सकता है? कोई भी प्लस, माइनस, डिवाइड, मल्टीप्लाई. ठीक है, देन उसके बाद एक और हम फिर कोई वैल्यू लिखते हैं एंड देन लास्ट में हम जो भी हम कैलकुलेशन परफॉर्म करना चाहते हैं उसके बाद हम क्या लिखते हैं? इक्वल टू. बट इन एक्सेल formulas begin with an equal to sign such as equal to 2 + 2. ठीक है, तो जैसे कि मैथमेटिक्स में हम पहले कोई एक पर्टिकुलर वैल्यू लिखते हैं, देन ऑपरेटर यूज़ करते हैं एंड फाइनली हम इक्वल टू लिखते हैं, लेकिन एक्सेल में इससे टोटली ऑपोजिट होता है. सबसे पहले हमारा जो एक्सेल में फॉर्मूला जो बिगिन करता है वो इक्वल टू साइन से करता है. जैसे यहाँ पर एग्जांपल आपको गिवन है, इक्वल टू 2 + 2. Excel immediately recognizes any subsequent data as a formula when it begins with an equal to sign. ठीक है, तो Excel किसी भी subsequent data को, मतलब किसी भी डेटा को एज ए फॉर्मूला रिकॉग्नाइज कर लेता है जब भी वो पर्टिकुलर डेटा इक्वल टू साइन से लिखा जाता है.
तो किसी भी सेल में अगर आप इक्वल टू साइन पहले लिख दोगे तो एक्सेल ऑटोमेटिकली ये रिकॉग्नाइज कर लेगा दैट यू आर गोइंग टू राइट ए फॉर्मूला ओवर देयर. ठीक है. सो नाउ सेल रेफरेंसिंग. Every cell in a worksheet has a unique address or so-called cell reference. So this particular thing we read in the previous chapter as well कि हमारा हर एक सेल का एक पर्टिकुलर यूनिक एड्रेस होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सेल रेफरेंस. By default, cells are identified by a specific column letter and a row number. So cell A5 identifies the fifth cell down in the column A. ठीक है. तो हमने क्या बताया कि सेल रेफरेंस क्या है, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का एक यूनिक एड्रेस होता है और बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारे सेल्स होते हैं वो एक पर्टिकुलर कॉलम लेटर से स्पेसिफाई किए जाते हैं और एक रो नंबर से स्पेसिफाई किए जाते हैं. एग्जाम्पल के लिए अगर A5 मैं सेल का नेम बता रही हूँ तो A5 का क्या मीनिंग है कि वहाँ पर A हमारा कॉलम है और फिफ्थ हमारी रो है. ओके. While entering formulas, use cell references instead of actual data wherever possible. तो हम एक्सेल में जब भी हमें फॉर्मूलाज लिखने होते हैं सो इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड दैट यू यूज़ सेल रेफरेंसेस एक्चुअल डेटा के बजाय. ठीक है. मतलब अगर सपोज कीजिए कि मुझे A1 प्लस A2 को ऐड करना है, मीन्स A1 में अगर सपोज मेरे पास वैल्यू है 10 और A2 में मेरे पास वैल्यू है 20. सो इंस्टेड ऑफ यूजिंग द एक्चुअल वैल्यूज आई विल यूज द सेल रेफरेंस इन द फॉर्मूला. Okay, when you use cell references and you change a number used in a formula, Excel will automatically redo the calculation for you. अब suppose कीजिए कि आपने फॉर्मूला में सेल रेफरेंसेस का यूज़ किया है A1 प्लस A2. ठीक है. और A1 प्लस A2 की वैल्यू क्या थी, A1 की वैल्यू थी 10 एंड A2 की वैल्यू थी 20 और रिजल्ट क्या आ गया इसका 30. ठीक है. अगर सपोज कीजिए कि मैंने अब A1 की वैल्यू चेंज कर दी है तो मैं जो कैलकुलेशन अब करूँगी, जो मेरा कैलकुलेटेड पार्ट आएगा वो A1 की जो चेंज्ड वैल्यू है उसका ही कैलकुलेशन हो करके मेरे पास अब आएगा. ठीक है. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द सेल रेंज. अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड सेल्स इन अ वर्कशीट इज कॉल्ड अ सेल रेंज. तो किसी भी वर्कशीट के अंदर जो भी हमारा रिलेटेड सेल्स का ग्रुप होता है उसे हम बोल देते हैं सेल रेंज. Cell ranges are identified by their anchor points, the upper left corner and the lower right corner of the range. ठीक है. तो हम सेल रेंजेस को किस तरीके से आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा वो एंकर पॉइंट टॉप अपर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होता है और लोअर राइट कॉर्नर तक आता है. द रेंज रेफरेंस इंक्लूड्स बोथ एंकर पॉइंट सेपरेटेड बाय ए कॉलम. ठीक है. तो जो हमारा रेंज रेफरेंस होता है उसमें दोनों ही एंकर पॉइंट्स होते हैं लेकिन वो एंकर पॉइंट्स एक कॉलम से सेपरेट करके लिखे जाते हैं. रेंज नेम्स मस्ट स्टार्ट विद द लेटर एंड कैन इंक्लूड अपर केस एंड लोअर केस लेटर. तो जो हमारे पास रेंज नेम्स होते हैं वो एक लेटर से स्टार्ट होते हैं एंड दोज things can be written in capitals as well as small letters. You cannot add space in range names. ठीक है. तो जब भी हम रेंज नेम्स लिखते हैं तो हम कभी भी वहाँ पर स्पेस ऐड नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल द रेंज नेम A1 colon B3 includes cells A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3. तो अगर सपोज कीजिए मैं एक रेंज नेम लिख रही हूँ A1 colon B3 तो दैट मीन्स उसके अंदर कौन कौन सी सेल्स है, A1, A2, A3, B1, B2 एंड B3. फाइन. सो नाउ वी विल टॉक अबाउट द ऑपरेटर्स. तो अभी हमने फॉर्मूला में क्या पढ़ा कि हमारे पास कुछ वैल्यूज़ होती है और कुछ ऑपरेटर्स होते हैं. ठीक है. सो अ फॉर्मूला कैन कंटेन वन और मोर ऑपरेटर्स. तो कोई भी फॉर्मूला होता है उसमें एक या एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स का यूज़ हो सकता है. एंड ऑपरेटर स्पेसिफाइज द टाइप ऑफ कैलकुलेशन यू वांट टू परफॉर्म. ऑब्वियसली कोई भी ऑपरेटर आपको ये बताता है कि आपको उस पर्टिकुलर चीज़ में क्या किस टाइप की कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है. Okay, so here we have four types of operators. So first of all we have arithmetic operators. You can use arithmetic operators to perform mathematical calculations. ठीक है. तो हम यहाँ पर arithmetic operators का यूज़ करते हैं जब भी हमें mathematical calculations perform करनी होती हैं. So operators यहाँ पर कौन कौन से हैं? Plus, that is addition, which is used for adding 2 numbers, 3 numbers or any numbers. ठीक है. Then comes subtraction. तो A1 माइनस B1 जो सब्सट्रैक्शन के लिए यूज़ किया जाता है. देन कम्स एस्ट्रिक्स का साइन है, दैट मीन्स इट इज़ यूज फॉर मल्टीप्लिकेशन. सो A1 स्टार B1. देन कम्स डिवीजन.
So it is used for dividing any number with any number. Okay, then comes percent, then comes exponentiation. Okay, so these were some of the arithmetic operators. After that we have comparison operators. So comparison operators क्या करते हैं? You can use comparison operators to compare two values to return a value of true or false. ठीक है, तो कंपैरिजन ऑपरेटर्स बेसिकली दो वैल्यूज़ को कंपेयर करने के लिए यूज़ किया जाता है, ताकि उन दो वैल्यूज़ को कंपेयर करके हमारे पास जो रिजल्ट आए वो या तो ट्रू में आए या फिर वो फॉल्स में आए. ओके, सो सबसे पहला हमारे पास जो कंपैरिजन ऑपरेटर है दैट इज़ इक्वल टू. ठीक है, देन कम्स ग्रेटर देन कम्स लेस देन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू. सो इट इज़ रिटन एज, सबसे पहले हम ग्रेटर देन का साइन लगाते हैं, देन हम इक्वल टू का साइन लगाते हैं. ओके, देन इज लेस देन और इक्वल टू, एंड आफ्टर दैट वी हैव नॉट इक्वल टू. ठीक है, तो नॉट इक्वल टू कैसे लिखा जाएगा? लेस देन और ग्रेटर देन. ठीक है, तो इस तरीके से हमारा नॉट इक्वल टू का साइन लिखा जाता है. ओके, आफ्टर दैट वी हैव रेफरेंस ऑपरेटर्स. So the reference operators combine two cell ranges to create a single joint reference. ठीक है, जो हमारे पास रेफरेंस ऑपरेटर्स होते हैं ये बेसिकली दो सेल रेंजेस को आपस में कंबाइन कर देते हैं ताकि हम एक सिंगल जॉइंट रेफरेंस को क्रिएट कर सकें. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कॉलन. ठीक है, तो जैसे ऑपरेटर में कॉलन में दो डॉट्स, दैट मीन्स इट इज़ अ कॉलन. सो डिस्क्रिप्शन क्या है इसकी? Range operator produces a range from two cell references. Example C5 colon D5. तो कॉलन किस लिए यूज़ होता है? एक ये पर्टिकुलर रेंज ऑपरेटर है जो एक रेंज को क्रिएट कर देता है दो सेल रेफरेंसेस से, जैसे कि C5 colon D5. आफ्टर दैट वी हैव स्पेस. इंटरसेक्शन ऑपरेटर प्रोड्यूसेस अ रेंज दैट इज़ द इंटरसेक्शन ऑफ टू रेंजेस. ठीक है, तो सपोज करिए आपके पास दो रेंजेस हैं, उनकी हमें इंटरसेक्शन ऑपरेटर जो है उसकी वो एक रेंज बना देता है, तो इसलिए हम इस पर्टिकुलर ऑपरेटर को यूज़ करते हैं. एग्जाम्पल D1 colon E5, B2 colon E7. ओके, आफ्टर दैट वी हैव कॉमा. यूनियन ऑपरेटर कंबाइंस मल्टीपल रेफरेंसेस इनटू वन रेफरेंस. एग्जाम्पल सम B5 colon B15, देन कम्स D5 colon D15. तो जो कॉमा है बेसिकली क्या है? यूनियन ऑपरेटर है जो मल्टीपल रेफरेंसेस को एक सिंगल रेफरेंस में कंबाइन कर देता है. ठीक है, सो जैसे कि यहाँ पर सम दे रखा है, सम के अंदर हमारे पास दो बेसिकली रेंजेस है, B5 से लेकर B15 एंड D5 से लेकर D15. ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रेफरेंस ऑपरेटर्स. After that we have logical operators. Logical operators are used to compare two or more relational expressions. ठीक है, these operators also give a single value as result true or false. ठीक है, तो लॉजिकल ऑपरेटर्स किस लिए यूज़ किए जाते हैं? ताकि हम दो या दो से ज़्यादा रिलेशनल एक्सप्रेशंस को आपस में कंपेयर कर सकें. ठीक है, सो दीज ऑपरेटर्स ऑल्सो गिव अ सिंगल वैल्यू एज रिजल्ट. या तो वो जो वैल्यू देंगे या तो वो ट्रू होगी या फिर वो फॉल्स होगी. ठीक है, सो हेयर वी हैव नॉट, एंड और. ठीक है स्टूडेंट्स, सो दीज वर सम ऑफ द ऑपरेटर्स. तो हमने पहले पढ़ा अरिथमेटिक ऑपरेटर्स, then here we have reference operators, then we have logical operators, and also we studied about the comparison operators. Okay, so here we have one more topic, that is order of calculation. When a formula contains more than one operator, Excel performs the calculation in a specific order according to precedence. ठीक है, तो सपोज कीजिए एक फॉर्मूला है जिसमें एक से ज़्यादा ऑपरेटर्स यूज़ हुए हुए हैं. ठीक है, सो एक्सेल जो है उन सब कैलकुलेशंस को उस पर्टिकुलर ऑर्डर में परफॉर्म करेगा जिस हिसाब से उन पर्टिकुलर ऑपरेटर्स की प्रेसिडेंस है. ठीक है, द ऑर्डर इन विच एक्सेल परफॉर्म्स ऑपरेशंस इन फॉर्मूला इज कॉल्ड ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन. तो जिस ऑर्डर में हमारा एक्सेल ऑपरेशंस को परफॉर्म करता है उसे हम बोल देते हैं ऑर्डर ऑफ कैलकुलेशन. यू कैन यूज़ पेरेंथेसिस. ठीक है, पेरेंथेसिस मीन्स जिसको हम नॉर्मली ब्रैकेट्स बोलते हैं. यू कैन यूज़ पेरेंथेसिस टू चेंज द ऑर्डर इन विच एक्सेल परफॉर्म्स कैलकुलेशंस. ठीक है, तो सपोज कीजिए कि आपको अपनी कैलकुलेशन में किसी एक पर्टिकुलर ऑपरेटर को का ऑर्डर चेंज करना है. ठीक है, मतलब आपको किसी एक पर्टिकुलर ऑर्डर में अपनी कैलकुलेशन करानी है, तो वहाँ पर आप पेरेंथेसिस का यूज़ करके उसका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं.
एक्सेल विल परफॉर्म द कैलकुलेशन इनसाइड द पैरेंथेसिस फर्स्ट। ठीक है, तो एक्सेल क्या करेगा, उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को, जो भी आपके पैरेंथेसिस में है, जो भी आपकी ब्रैकेट्स में लिखी हुई है, उस पर्टिकुलर कैलकुलेशन को पहले परफॉर्म करेगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू वॉन्ट टू डिटरमिन द average of values in A3, B3 and C3 and you enter the equation equal to A3 plus B3 plus C3 divide by 3, you will receive the wrong answer. Suppose कीजिए कि मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं, A3, B3 और C3 में मेरे पास 3 वैल्यूज़ हैं और मुझे इन तीनों वैल्यूज़ का एवरेज निकालना है। तो सपोज़ करो कि मैं फॉर्मूला लिखती हूँ इसका इक्वल टू A3 प्लस B3 प्लस C3 डिवाइड बाय 3। तो इसका जो मेरे पास आंसर आएगा दैट विल बी इनकरेक्ट। क्यों आएगा? दिस इज बिकॉज एक्सेल डिवाइड्स द वैल्यू इन सेल C3 बाय 3, क्योंकि यहाँ पर जो एक्सेल है वो C3 को 3 से डिवाइड कर देगा एंड देन एड्स दैट रिजल्ट टू द A3 प्लस B3। तो सबसे पहले वो क्या करेगा, C3 को 3 से डिवाइड कर देगा, फिर जो उसका रिजल्ट आएगा उसको A3 और B3 के साथ ऐड कर देगा। फॉलोइंग ऑपरेटर प्रेसिडेंस, डिवीजन टेक्स प्रेसिडेंस ओवर एडिशन। ठीक है, तो क्या होता है बेसिकली, जो हमारे पास डिवीजन होता है वो सबसे पहले परफॉर्म होता है। ठीक है, तो यहाँ पर डिवीजन पहले परफॉर्म हो गया, उसने एडिशन से ज़्यादा प्रेसिडेंस ले रखी है। द करेक्ट वे टू टाइप द एवरेज फार्मूला इज इक्वल टू, कैसे करेंगे हम, अगर हमें प्रॉपरली एक एवरेज फार्मूला का यूज़ करना है करेक्ट वे से, वो तो हम कैसे करेंगे, सबसे पहले वी विल राइट इक्वल टू, देन वी विल अप्लाई पैरेंथेसिस ओपन A3 प्लस B3 प्लस C3, ठीक है, पैरेंथेसिस क्लोज, डिवाइड बाय 3, enclosing the values in the parentheses। ठीक है, एक्सेल एड्स द सेल वैल्यूज फर्स्ट बिफोर डिवाइडिंग द सम बाय 3। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो ब्रैकेट्स या फिर पैरेंथेसिस का यूज़ किया उससे क्या हुआ, सबसे पहले हमारी A3, B3 और C3 की वैल्यूज़ ऐड हुई और जब वो ऐड हो गई तो वो दैट पर्टिकुलर सम वाज डिवाइडेड बाय 3। सो इस तरीके से हमारा जो एवरेज फॉर्मूला है वो परफेक्टली तरीके से अप्लाई होगा। ओके, so now here we have errors in formula. An error message appears when Excel cannot properly calculate or display the result of a formula. अब यहाँ पर हम पढ़ेंगे कि कैसे हमारा एक पर्टिकुलर फॉर्मूला के अंदर एरर मैसेज शो हो जाता है। ठीक है, तो जैसे कि सबसे पहले हमारे पास आता है हैश। ठीक है, तो वो हैश बेसिकली आपको क्या दिखा रहा है, देखो यहाँ पर हमारे पास A1 में कुछ वैल्यू है, A2 में कुछ वैल्यू है। ठीक है, A3 में उसने क्या दिखा दिया, काफ़ी सारे हैश साइंस दिखा दिए। सो द कॉलम इज टू नैरो टू डिस्प्ले द रिजल्ट ऑफ अ कैलकुलेशन, यू कैन चेंज द कॉलम विड्थ टू डिस्प्ले द रिजल्ट। तो हमने बेसिकली A3 में क्या फॉर्मूला अप्लाई किया था, हमने फॉर्मूला अप्लाई किया था A1 स्टार A2, मतलब मुझे A1 की वैल्यू को A2 से मल्टीप्लाई करना है। तो उसने हैश इसलिए दिखाया कि दैट पर्टिकुलर कॉलम विड्थ इज नॉट इनफ टू होल्ड द रिजल्ट ऑफ A1 स्टार A2। ठीक है, तो ये पर्टिकुलर जो हैश साइंस है, ये एरर मैसेज दिखा रहा है कि आपकी जो कॉलम की विड्थ है वो इतनी नहीं है कि उस रिजल्ट को वो होल्ड कर सके। ठीक है, देन वी हैव डिवीजन डिवाइड बाय 0। ठीक है, अब क्या है, the formula divides a number by 0, Excel considers a blank cell to have a value of 0। अब देखिए बेसिकली क्या हुआ, यहाँ पर A1 में वैल्यू थी 50। ठीक है, तो और क्या था, 2 में कुछ भी नहीं। तो बेसिकली क्या हुआ यहाँ पर, द फॉर्मूला डिवाइड्स अ नंबर बाय 0। अब क्या हुआ कि आपने जो आपका फॉर्मूला था उसमें आपने क्या दे दिया, A1 डिवाइड बाय A2। अब जहाँ पर आपका ब्लैंक सेल है, ब्लैंक सेल को वो क्या वैल्यू देता है, वो वैल्यू देता है 0। ठीक है, तो अब आपने क्या किया, आपने कर दिया फॉर्मूला में लिख दिया A1 डिवाइड बाय A2, दैट मीन्स 50 डिवाइड बाय 0। तो 50 डिवाइड बाय 0 जो आपके पास आ रहा है वो ये बता रहा है कि जो भी आपने कोई भी वैल्यू को 0 से डिवाइड किया है तो ये आपको वो एरर मैसेज शो कर रहा है। ठीक है, then we have third error message, that is name. The formula contains a function name or cell reference that Excel does not recognize। ठीक है, अब क्या होता है, अब जो हमारे पास सेल है उसमें फॉर्मूला है AG प्लस A2 प्लस A3। इन दिस एग्जाम्पल द सेल रेफरेंस A1 वॉज टाइप्ड इनकरेक्टली। अब सपोज कीजिए कि मुझे क्या करना था,
मुझे A1 A2 और A3 का सम करना था, तो मुझे एक्चुअल में फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए था, A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन बाय मिस्टेक यहाँ पर मैंने फॉर्मूला गलत लिख दिया। तो मैंने यहाँ पर A1 के प्लेस पे क्या लिख दिया, AG प्लस A2 प्लस A3। सो दैट्स व्हाई इट इज शोइंग अ error message that the formula contains the function name or cell reference that Excel does not recognize, क्योंकि यहाँ पर AG तो कुछ भी नहीं है। सो दैट्स मीन्स कि जो फॉर्मूला हमने लिखा है उसमें कोई ऐसा फंक्शन नेम है जो आपका Excel रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है। सो इन दिस एग्जाम्पल द सेल रेफरेंस A1 was typed incorrectly. Okay, now the next error message, here we have reference. The formula refers to the cell that is not valid. दिस सेल कंटेन्स दी फॉर्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3। ठीक है, तो यहाँ पर जो सेल है उसमें फॉर्मूला क्या है, A1 प्लस A2 प्लस A3। इन दिस एग्जाम्पल अ रो कंटेनिंग अ सेल रेफरेंस यूज्ड इन द फॉर्मूला वॉज डिलीटेड। ठीक है, तो बेसिकली ये रेफर क्या कर रहा है कि आपने जो भी फॉर्मूला लिखा है उसमें जो पर्टिकुलर सेल रेफरेंस आप दे रहे हो वो पर्टिकुलर जो सेल है वो वहाँ से डिलीट हो चुकी है। सो दैट्स वाई इट इज़ गिविंग दिस पर्टिकुलर एरर मैसेज। ओके, सो हमने यहाँ पे क्या मैसेज दिया था, हमने यहाँ पे क्या फॉर्मूला लिखा था, A1 प्लस A2 प्लस A3, लेकिन यहाँ से जो A1 वाली जो पर्टिकुलर हमारा है सेल वो दैट हैज़ बीन डिलीटेड, दैट्स वाई इट्स शोइंग दिस पर्टिकुलर मैसेज। ओके, आफ्टर दैट वी हैव वन मोर एरर मैसेज दैट इज़ वैल्यू। The formula refers to a cell that Excel cannot use in the calculation. ठीक है, तो ये बेसिकली इसलिए ये पर्टिकुलर चीज़ दिखाता है कि जो फॉर्मूला आपने लिखा है वो पर्टिकुलर चीज़ एक्सेल यूज़ नहीं कर सकता कैलकुलेशन परफॉर्म करने के लिए। जैसे कि दिस सेल कंटेन्स द फॉर्मूला A1 प्लस A2 प्लस A3। अब आप यहाँ पर देखिए, A1 में हमारे पास वैल्यू है 10, A2 में वैल्यू है 20 और A3 में हमारे पास वैल्यू क्या है, मंडे। सो इन दिस एग्जाम्पल अ सेल रेफरेंस यूज इन द फॉर्मूला कंटेन टेक्स्ट। तो आप कैसे कर सकते हो, जब आपने दो तो वैल्यूज डाल रखी हैं और एक आपने टेक्स्ट लिख दिया, सो दिस पर्टिकुलर एरर मैसेज शोज दैट जो आपने फॉर्मूला लिखा है उसमें आपने जो भी सेल यूज़ किया है उसकी हेल्प से हम कैलकुलेशन नहीं कर सकते। ठीक है स्टूडेंट्स, सो these were some of the error messages that we will be shown when we apply some wrong things in the formula. Okay, so now how to create a formula. You can type a formula in any cell in your worksheet. A formula helps you to calculate and analyze data in your worksheet. All formulas begin with an equal to sign in Excel. ठीक है, तो अब क्या है, हमें फॉर्मूला को क्रिएट करना है। तो हम किसी भी सेल के अंदर एक फॉर्मूला को टाइप कर सकते हैं और फॉर्मूला की हेल्प से हम क्या करते हैं, हम कुछ भी कैलकुलेशन परफॉर्म कर सकते हैं और डेटा को एनालाइज कर सकते हैं वर्कशीट में। ठीक है, तो जो भी फॉर्मूलाज हम लिखते हैं बेसिकली इट स्टार्ट्स विद एन इक्वल टू साइन। ठीक है, अब सपोज कीजिए कि आपने एक सेल के अंदर एक फॉर्मूला को टाइप करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल क्लिक ऑन दैट पर्टिकुलर सेल, जैसे कि यहाँ पर सेल को क्लिक किया हुआ है। देन टाइप एन इक्वल टू साइन टू बिगिन द फॉर्मूला। तो नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या होगा कि हम इक्वल टू साइन से स्टार्ट करेंगे अपने फॉर्मूला को टाइप करना। एक्सेल विल डिस्प्ले द फॉर्मूला इन द फॉर्मूला बार एंड इन द एक्टिव सेल। तो जैसे आप इक्वल टू को प्रेस करेंगे वैसे ही फॉर्मूला बार पर भी हमारे पास वो जो फॉर्मूला बार है वो क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, सो फॉर्मूला और वहाँ पर आपको शो होने लगेगा। क्लिक ऑन द फर्स्ट सेल यू वांट टू रेफर इन द फॉर्मूला। अब क्या करना है आपने, जैसे हमने बताया था कि जब भी आप फॉर्मूला को लिखते हो तो आप सेल रेफरेंसेस का यूज़ करते हैं। तो आपको अपने फॉर्मूला में जिस भी पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करना है, ठीक है, आप उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करेंगे। ओके, एक्सेल इंसर्ट्स द सेल रेफरेंस इनटू द फॉर्मूला, और इस तरीके से जो भी आपने पर्टिकुलर सेल रेफरेंस को इंसर्ट किया है तो वो आपके फॉर्मूला में इंसर्ट हो जाएगा। ओके, सो देन यू विल टाइप द पर्टिकुलर ऑपरेटर। फॉर्मूला के लिए जो भी आपको पर्टिकुलर ऑपरेटर यूज़ करना है, चाहे वो प्लस साइन है चाहे वो माइनस है, वॉट एवर यू वॉन्ट टू यूज़, यू विल टाइप दैट पर्टिकुलर ऑपरेटर इन द फॉर्मूला। क्लिक ऑन द नेक्स्ट सेल यू वांट टू रेफर इन द फॉर्मूला, और उसके बाद आपको जिस पर्टिकुलर सेल का रेफरेंस देना है आप उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट करोगे। ठीक है, सो एक्सेल इंसर्ट्स द सेल रेफरेंस इनटू द फॉर्मूला, और इस तरीके से फिर जो एक्सेल में आपका वो पर्टिकुलर सेल रेफरेंस फॉर्मूला में लिखा जाएगा। ठीक है,
इसी तरीके से आप स्टेप्स को रिपीट करते रहेंगे. देन एक्सेल इंसर्ट्स द सेल रेफरेंस इनटू द फॉर्मूला बार एंड इन द एक्टिव सेल. तो क्या होता है कि जो भी आप सेल रेफरेंस को लिखते जाते हो वो फॉर्मूला बार में भी आता जाता है और आपके एक्टिव सेल में भी आता रहेगा. Press the enter key to get the formula, and finally when you're finished then you will press the enter key and you will get the formula. ओके, द फॉर्मूला रिजल्ट अपीयर्स इन द एक्टिव सेल. ठीक है, जैसे आप एंटर की प्रेस करोगे तो जो भी पर्टिकुलर फॉर्मूला आपने कैलकुलेशन के लिए लिखा है तो आपके पास वो पर्टिकुलर रिजल्ट आ जाएगा. ठीक है, टू व्यू द फॉर्मूला सिंपली क्लिक द सेल. अब सपोज करो कि आपने क्या फॉर्मूला लिखा था, तो सिंपली जिस उस पर्टिकुलर सेल पर आप सेलेक्ट करोगे और आपको फॉर्मूला शो हो जाएगा. द फॉर्मूला बार डिस्प्लेस द फॉर्मूला असाइन टू द एक्टिव सेल. ठीक है, तो जो भी पर्टिकुलर सेल पर आप हो अभी, जो एक्टिव सेल है, तो वो बेसिकली जब आप उसके ऊपर सेलेक्ट करोगे तो फॉर्मूला बार में आपको पर्टिकुलर फॉर्मूला दिखाई देगा जो उस एक्टिव सेल के लिए असाइंड हुआ है. ठीक है, सो इन दिस वे यू कैन क्रिएट अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. Okay, so after that we have entering a formula. In the previous section you have created the whole formula by selecting the data in the various steps, but you can enter the whole formula into any cell by typing in your worksheet. तो अभी हमने जब एक फॉर्मूला को क्रिएट किया था तो उसमें हमने बेसिकली पूरा फॉर्मूला को डेटा को सिलेक्ट करके लिखा था. लेकिन हम क्या कर सकते हैं, अगर सपोज करो हमें फॉर्मूला लिखना है तो हम फॉर्मूला को टाइप करके भी लिख सकते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर. सो व्हाट यू नीड टू डू, सबसे पहले आप उस पर्टिकुलर सेल को सेलेक्ट कीजिए जहाँ पर आपको फॉर्मूला लिखना है. देन हमें पता है कि कोई भी फॉर्मूला हमारा इक्वल टू साइन से स्टार्ट होता है, तो हम क्या लिखेंगे उस पर्टिकुलर सेल में इक्वल टू साइन. देन हम क्या करेंगे, हम अपने फॉर्मूला को टाइप करेंगे एंड देन वी विल प्रेस द एंटर की. ठीक है, द फॉर्मूला रिजल्ट अपीयर्स इन द सेल. तो जो भी फॉर्मूला का रिजल्ट है वो आपको सेल में शो हो जाएगा. और अगर आपको उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को व्यू करना है तो आप फर्स्टली क्या करोगे, उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक कर दोगे. ठीक है, तो जैसे यहाँ पर 330 आंसर आ रहा है तो फॉर्मूला बार में जो भी उसका पर्टिकुलर फॉर्मूला है वो वहाँ पर आपको मेंशन हो रहा है. द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द फॉर्मूला असाइन टू दैट एक्टिव सेल. ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हम एंटर कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला को. नाउ एडिटिंग अ फॉर्मूला. अब हमने क्या किया था कि हमने क्रिएट किया फॉर्मूला. ठीक है, हमने फिर क्या किया कि हमने एंटर कैसे कर सकते हैं किसी भी फॉर्मूला को, बाय टाइपिंग इट. नाउ वी विल सी कि हाउ वी कैन एडिट अ पर्टिकुलर फॉर्मूला. यू कैन एडिट द फॉर्मूला एनी टाइम बाय द फॉलोइंग स्टेप्स. तो कोई किसी भी फॉर्मूला को हम कभी भी एडिट कर सकते हैं. ठीक है, सो देखते हैं क्या क्या स्टेप्स हमें फॉलो करने पड़ेंगे अपने फॉर्मूला को एडिट करने के लिए. सो डबल क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला यू वांट टू चेंज. ठीक है, तो सबसे पहले जिस भी पर्टिकुलर सेल में जहाँ पर आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है हम उस पर्टिकुलर सेल को डबल क्लिक करेंगे. द फॉर्मूला अपीयर्स इन द सेल. अब क्या है, वहाँ पर जो भी फॉर्मूला है वो वहाँ पर अपीयर हो जाएगा. एक्सेल आउटलाइंस ईच सेल यूज्ड इन द फॉर्मूला विद अ डिफरेंट कलर. तो जैसे ही आपका वो फॉर्मूला उस पर्टिकुलर सेल में अपीयर हो गया तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला में आपने जितने भी सेल्स का यूज़ किया है, मतलब जितने भी सेल रेफरेंसेस का यूज़ किया है, तो हर एक सेल रेफरेंस को एक पर्टिकुलर कलर मिल जाएगा. जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो 70 को हम एक पर्टिकुलर कलर प्रोवाइडेड है, 55 को लाइट रेड, 60 को देन अ डिफरेंट कलर, 65 को डिफरेंट कलर, 80 को डिफरेंट कलर. सो दीज आर ऑल द सेल रेफरेंसेस विच हैव बीन प्रोवाइडेड डिफरेंट कलर्स. ठीक है, press the arrow key to move the flashing insertion point to where you want to remove or add characters. तो आपके कीबोर्ड पर एरो की होती है, उसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, मूव कर सकते हो इंसर्शन पॉइंट को जहाँ पर भी आपको डेटा को रिमूव करना है या फिर कहीं पर भी आपको अपने कैरेक्टर्स को ऐड करना है. टू ऐड डेटा वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेज ऑन योर स्क्रीन टाइप द डेटा. ठीक है, अब जहाँ पर आपको डेटा को ऐड करना है, ठीक है, तो वहाँ पर आप चले जाओ और वहाँ पर आप डेटा को टाइप कर दो. टू डिलीट द डेटा वेयर द इंसर्शन पॉइंट फ्लैशेस यूज बैक स्पेस और डिलीट की. ठीक है, अब सपोज करो कि आपको किसी डेटा को डिलीट करना है तो जहाँ पर भी आपका इंसर्शन पॉइंट फ्लैश कर रहा है वहाँ पे डिलीट करने के लिए आप बैक स्पेस की दबाओगे या फिर डिलीट की को आप प्रेस कर दोगे. व्हेन यू फिनिश मेकिंग चेंजेस टू द फॉर्मूला प्रेस द एंटर की. और जब आपने अपने फॉर्मूला में जितने भी चेंजेस करने थे जब आप वो कर लेते हो तो देन यू विल जस्ट प्रेस द
एंटर की। ओके ओके, देन वी विल टॉक अबाउट कॉपिंग अ फॉर्मूला। अभी हमने क्या किया, हमने फॉर्मूला को क्रिएट किया, देन हमने फॉर्मूला को एंटर किया, देन हमने फॉर्मूला को एडिट किया। अब नाउ व्हाट वी नीड हेयर इज कॉपिंग अ फॉर्मूला, कि हमें किसी फॉर्मूला को कॉपी करना है। Okay, if you want to use the same formula in your worksheet several times, you can save your time by copying the formula. अब सपोज कीजिए कि मुझे अपनी वर्कशीट के अंदर सेम फार्मूला को अगेन एंड अगेन यूज़ करना है, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं उस पर्टिकुलर फार्मूला को कॉपी कर सकती हूँ और इसकी वजह से मैं अपना टाइम सेव कर सकती हूँ। Excel autofill feature will quickly copy formulas across rows or columns in your worksheet. ठीक है, तो आपको पता है कि हमारे पास एक ऑटोफिल फीचर होता है, तो बेसिकली एक्सेल के अंदर मैं ऑटोफिल फीचर का यूज़ करके अपने उन पर्टिकुलर फॉर्मूलाज को कॉपी कर सकती हूँ, चाहे रोज़ में या फिर कॉलम्स के अंदर। ठीक है, सो क्लिक ऑन द सेल कंटेनिंग द फॉर्मूला यू वांट टू कॉपी। ठीक है, तो हम उस पर्टिकुलर सेल को क्लिक करेंगे जहाँ पे हमें जो भी वो पर्टिकुलर फॉर्मूला रिटर्न है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को हम, उस पर्टिकुलर सेल को हम क्लिक करेंगे। द फॉर्मूला बार डिस्प्लेज द फॉर्मूला फॉर द सेल। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर 330 आया है, जो प्रीवियस अभी तक हमने किया था, तो 330 यहाँ पर जो टोटल बेसिकली आ रहा है, तो उस सेल पर जब हम गए तो फॉर्मूला बार में उस पर्टिकुलर सेल के लिए जो भी फॉर्मूला था वो वहाँ पर आपको शो हो रहा है। नाउ पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। तो जहाँ पर हमारा 330 मेंशन है या फिर जहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो उस पर्टिकुलर सेल के नीचे आपके पास एक पर्टिकुलर साइन आएगा। जैसे ही अब आपको क्या करना है, आपको पोजीशन द माउस पॉइंटर ओवर द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द सेल। ठीक है, तो आप सबसे पहले माउस पॉइंटर को इस तरीके से पोजीशन करोगे उसके बॉटम राइट कॉर्नर में, एंड देन ड्रैग करते हुए उस पर्टिकुलर माउस पॉइंटर को आप वहाँ तक ले जाओगे जहाँ तक आपने उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को कॉपी करना है। ठीक है, तो अब सपोज हम कहाँ से चले थे, हम 330 के नीचे वाली वैल्यू से चले थे और हम कहाँ तक ले आए उसको, 14th रो तक ले आए। ठीक है, सो अब क्या है, हम अब मेरा वो जो पर्टिकुलर ऑटोफिल फीचर की हेल्प से मेरी वो जो पर्टिकुलर फॉर्मूला है मेरी सारी की सारी इन रोज में आ गया। ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉलम के अंदर आ गया। सो द रिजल्ट्स ऑफ द फॉर्मूलाज अपीयर। ठीक है, टू व्यू वन ऑफ द न्यू फॉर्मूलाज क्लिक अ सेल दैट रिसीव्ड अ कॉपी ऑफ द फॉर्मूला। अब सपोज कीजिए कि आपको चेक करना है कि ठीक है मैंने जो फॉर्मूला कॉपी किया दैट वाज राइट और नॉट। ठीक है, तो अगर आपको किसी भी फॉर्मूला को चेक करना है तो आप क्या करोगे, आप उस पर्टिकुलर सेल पर जाओगे जहाँ से आपने उस पर्टिकुलर फॉर्मूला को कॉपी किया हुआ है। ठीक है, तो आप उस पर्टिकुलर सेल पर क्लिक करोगे तो जो वो पर्टिकुलर सेल पे जो भी फॉर्मूला अप्लाई था वो आपको फॉर्मूला बार में शो हो जाएगा। ठीक है, विद द न्यू सेल रेफरेंसेस। ठीक है, जैसे यहाँ पर इसने 290 को सेलेक्ट किया हुआ है, तो 290 का क्या मीनिंग है कि यहाँ पर हमारा C8 यूज़ हुआ है, देन प्लस D8, देन E8, देन F8 एंड G8। सो ये हमारे पास न्यू सेल रेफरेंसेस आ गए उस पर्टिकुलर फॉर्मूला के लिए। ठीक है स्टूडेंट्स, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच।